Yeah, good noon everyone. Today we are discussing exercise 6.2 class 9th NCERT. Two questions were left. Previous question videography you can see in my previous video. We have to start with question number 5 now, which says in the given figure on the right hand side, if AB is parallel to CD and angle APQ is equal to 50 degree and angle PRD is equal to 127 degree, then we have to find out the value of X and Y. तो क्लास टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, जो भी डेटा गिवन है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पर किया है आपके लिए फिगर में. एज यू कैन सी आई हैव टेकन एंगल 1 एज 50 डिग्री विच इज़ एंगल APQ, एंगल 2 इज़ अननोन दैट इज़ एंगल PRQ, and angle 3 is 127 degree which is angle PRD. I hope I am clear here class. Yes sir. So given is angle APQ is 50 degree which is angle 1, angle PRQ is 127 degree which is angle 3. We have to find out the value of X and Y. फिगर में आप देख सकते हैं AB is parallel to CD. अगर AB is parallel to CD है तो बताइए Y angle 1 is equal to angle X. आई रिपीट, एंगल 1 और x क्यों इक्वल है? z बन रहा है, ध्यान से देखिए, z बन रहा है यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. Those who are attending the class online, I know all of them have this solution in their group. Please see towards it. Surya, angle 1 is equal to angle x. We have alternate interior angles. तो बेटा एंगल 150 था तो x भी 50 हो जाएगा, राइट? X भी 50 होगा. आफ्टर दैट QRD इज अ लाइन. तो बताइए y एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. Sir, linear pair. वेरी गुड, लीनियर पेयर. सो बेटा एंगल 3 इज गिवन टू यू 127. एंगल 3 आपको 127 गिवन है. टेक दैट 127 ऑन द राइट हैंड साइड. सो एंगल 2 इज 180 माइनस 127 यानी कि 53 डिग्री आ गया, राइट? Yes sir. Now you have the values of angle Y with you. You have the values of angle 2 with you, 53 degree. Please focus on triangle PQR. PQR में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए. X plus Y plus angle 2 is equal to 180 degree. In triangle PQR, I repeat, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है आपको. X के प्लेस पे लिखिए 50 डिग्री, Y के प्लेस पे लिखिए, Y अननोन है. एंगल 2 इन प्लेस ऑफ एंगल 2 प्लीज राइट डाउन 53 डिग्री इक्वल टू आ गया 180 डिग्री. तो एंगल y यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 103 यानी कि 77 डिग्री, राइट? तो क्लास एंगल y की वैल्यू हमें इसमें निकालनी थी जो कि 77 आ गई और x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.2. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 6.2 class 9. I am reading question for you first. If PQ and RS are two mirrors which are placed parallel to each other, an incident ray AB strikes the mirror PQ at B. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, AB जो इंसिडेंट रे है वो मिरर को स्ट्राइक कर रही है. और इसके अलावा CD जो रे है स्ट्राइक्स द मिरर RS. नेक्स्ट रे इज BC. Path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. We have to prove that lines AB is parallel to CD, as you can see the figure. I have done a little change in the figure. As you can see, I have done a little construction, my dear students. I have drawn BM and NC such that BM is parallel to NC, right? Given, as you can read, PQ and RS are two mirrors which are placed parallel and PQ is parallel to RS is given. We have to prove AB is parallel to CD. In construction, you draw BM and CN parallel to one another. I repeat, BM और CN आप parallel draw करेंगे एक दूसरे के, ये ध्यान रखना है. BM is parallel to CN. As you can see in the figure, I have taken angle ABM as angle 1, angle MBC as angle 2, angle BCN as angle 3
एंगल DCN इज एंगल 4, राइट। तो बेटा BM पैरेलल टू CN मत भूलना। रे देखो AB ट्रैवल कर रही है, फिर BC देन CD, ये पाथ है रे का। अब ध्यान से देखिए क्लास, एज BM इज पैरेलल टू CN, Z दिख रहा है आपको? अगर BM और CN आपस में पैरेलल है, यू कैन सी Z। तो बताइए वाई एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कम ऑन क्लास, गिव मी सम रिस्पॉन्स। वाई एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ऑल्टरनेट अजीत। Alternate interior angle. Don't hesitate in speaking. Why you are hesitating a lot? Be free to speak. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्लास Z बन रहा है, आप फिगर में देख सकते हैं। 2 और 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। फिजिक्स में आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं क्लास। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल है BM, ये इंसिडेंट रे है AB, फिर BC रिफ्लेक्टेड रे है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल 1 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल 2 बराबर होगा। दिस इज बाय सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यू कैन सी दैट। और सिमिलरली अगर यहाँ लगाएं तो BC इंसिडेंट रे है, CD रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 3 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 4 है। तो 3 और 4 आपस में इक्वल हैं। तो बेटा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। 2 और 3 को क्लास ऐड कर लीजिए, लेफ्ट हैंड ऐड होगी, यू विल गेट 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4। इन प्लेस ऑफ एंगल 3 यू राइट डाउन एंगल 2 बाय इक्वेशन नंबर, देखो इसमें कट नहीं करना, 3 के प्लेस पे 2 लिख लेना है बाय इक्वेशन नंबर 1, और 2 के प्लेस पे 3 लिख लेना है, कट नहीं करना। आई रिपीट, ये नहीं कि 3 की जगह 2 लिख के कट कर दो 2 और 2 को, नो। इन प्लेस ऑफ एंगल 3 राइट डाउन 2 एंड इन प्लेस ऑफ एंगल 2 यू राइट डाउन 3। अब ध्यान से देखिए फिगर में, एंगल 1 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं? एंगल ABC बना रहे हैं, Angle ABC. वेरी राइट। और एंगल 3 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं? Angle DCB. DCB, वेरी राइट। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB। मैं आपको फिगर को जूम इन करके दिखाता हूँ। 1 और 2 मिलके बना रहे हैं एंगल ABC, और 3 और 4 मिलके बना रहे हैं एंगल DCB, राइट। तो बेटा आ जाएगा एंगल ABC इज इक्वल टू DCB। पर अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज नथिंग, ये Z दिख रहा होगा बड़ा साहब आपको, बट दिस इज अ पेयर ऑफ ABC और DCB इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, Interior angle. therefore AB is parallel to CD. So class, this video was about 6.2 question number 5 and 6. In our next video we'll discuss example number 5, example number 6. All examples I would like to discuss, all example, 3 examples plus that theorem, angle sum property of triangle. Thank you.